Hello, students. What if I told you that the 500 rupee note in your wallet is, well, just a piece of paper? It's really just a promise. Today, we're going to unpack the incredible story of money and credit from ancient trade all the way to our modern banks. So, let's get right into it. First things first, let's do a little thought experiment. Just try to imagine a world with no cash, no coins, not even any digital payments. How would you buy your favorite chocolate? Or a new video game? I mean, how would anything get done? To understand all this, we're going to go through 5 key stages. We'll start in a world where money didn't exist, see what problems they faced. Then we'll witness the invention of money, understand how our modern currency works, and finally uncover the secret job that banks do. So let's jump in our time machine and go way back. When money wasn't a thing, what did people even do? Well, it was the age of direct exchange. Okay, picture this shoemaker. He's got a whole bunch of brand new shoes he's just made. He's super proud of his work. But his family can't eat leather, can they? What he really needs is wheat to feed them. So he goes out and finds a farmer who has plenty of wheat. Perfect, right? Well, not quite. The farmer takes one look at the shoes and says, "Thanks, but I already have shoes. What I really need is new clothes." And just like that, the deal is off. The shoemaker's stuck with the shoes, and the farmer still needs clothes. This system of direct trade, exchanging goods for goods, is called the barter system, and it has a huge fundamental flaw. So what is this biggest problem? Well, it all comes down to the need to find a perfect match every single time. Economists have a fancy term for this problem: double coincidence of wants. It sounds complicated, but the idea is actually super simple. For a trade to happen, you have to find someone who not only has what you want, but who also wants what you have. It's like trying to find a perfect trading partner for every single transaction. Imagine how difficult that is. This was a massive roadblock for growing economies. So what was the solution? One of humanity's most brilliant inventions: money, the ultimate middleman. You see, money acts as an intermediary. It breaks the trade into 2 simple steps. Now the shoemaker can sell his shoes to anyone for money. Then he can take that money and buy wheat from the farmer. No need for a perfect match. Problem solved. Of course, money didn't always look the way it does today. In ancient times, people used things that had value in themselves, like grains or cattle. Slowly, that evolved into coins made of precious metals, like gold and silver, and eventually, that led us to the paper notes and coins we use now. Just take a look at this comparison. On one side, you have a punch-marked coin from ancient India, more than 2,000 years old. And on the other, the rupee coin we use today. The journey between these two, it's just incredible. But this brings up a huge question. A gold coin is valuable because, well, it's made of gold. But a 500 rupee note is just a piece of paper. So why do we all agree that it's valuable? What's the secret? The difference is trust. Early forms of money had their own use value. You could eat the grain or use the gold. But today's modern money runs on a collective belief, a shared trust. It's valuable simply because we all agree that it is. And where does that trust come from? It's backed by the government. A currency is accepted because the government of the country authorizes it. Here in India, the Reserve Bank of India, the RBI, issues currency on behalf of the central government, and by law, no one can refuse to accept it as payment. Now, this whole system of modern money is tied to another key institution, the bank. And believe me, banks do a lot more than just keep your cash safe. They're literally the heart of the financial system because they take the money we deposit and they put it to work. And that's their most important job. When you put your extra cash into a bank account, it's called a demand deposit. And the name says it all. You can withdraw that money on demand whenever you need it. In that sense, your bank balance is just another form of money. Now here's the secret. In India, banks are only required to keep a small portion of their deposits, around 15%, as actual cash. This is to handle people's daily withdrawals. So that raises the big question. If the bank is only keeping 15% of your money, what happens to the other 85%? Where does it go? This is where the real magic happens. Banks use that majority portion to give out loans to people who want to start a business, buy a house, or pay for their education. They act as a bridge between those who have extra money and those who need money. And the interest they earn on those loans, that's how banks make a profit. And that, in a nutshell, is the bank's secret job. By accepting deposits and giving out loans, they mediate between savers and borrowers, keeping money flowing and powering the entire economy.
But this whole system rests on one fragile assumption, that not everyone will come asking for their money back at the exact same time. Which brings us to a final, thought-provoking question. What would happen if all the depositors showed up at the bank at once? Think about that, and we'll explore the answer in our next explainer. See you then! Hello students, welcome back. तो चलो, let's continue with our chapter Money and Credit. हम सबकी लाइफ में लोन या क्रेडिट, जिसे हम उधार भी कहते हैं, कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट द बिग क्वेश्चन इज, ये पैसा एक वरदान है या अभिशाप, अ बून और अ कर्स? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं. सो सबसे पहले ये क्रेडिट आखिर होता क्या है? लुक, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. क्रेडिट या लोन बस एक अग्रीमेंट है. एक तरफ है लेंडर यानी पैसे देने वाला, और दूसरी तरफ है बोरोवर, पैसे लेने वाला. लेंडर बोरोवर को मनी, गुड्स या सर्विसेज देता है, और बदले में बोरोवर एक प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में ये पैसा लौटा देगा. सिंपल इनफ, राइट? लेकिन यहीं से असल सवाल शुरू होता है. क्या क्रेडिट हमारा दोस्त है या दुश्मन? क्या ये एक वरदान है जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाता है, या फिर एक अभिशाप, एक कर्ज जो हमें एक ऐसी मुश्किल में डाल देता है जिससे निकलना ही इम्पॉसिबल हो जाए? इसी पजल को आज हम सॉल्व करेंगे. और इस पजल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है दो लोगों की कहानी सुनना. We're going to look at the tale of सलीम एंड स्वप्ना. इनकी स्टोरी से हम क्रेडिट के दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट फेसेस देखेंगे. तो पहले मिलते हैं सलीम से. सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है. अब हुआ ये कि फेस्टिवल सीजन में उसे 3000 जोड़ी जूतों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया. ऑब्वियसली इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए थे, रॉ मटेरियल खरीदना था. तो उसने लोन लिया. एंड यू नो व्हाट हैपेंड? उसने टाइम पर ऑर्डर डिलीवर किया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया और अपना लोन आराम से चुका दिया. सलीम के लिए क्रेडिट एक वरदान साबित हुआ, अ डेफिनेट बून. अब आती है स्वप्ना की स्टोरी. स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है. उसने भी अपनी जरूरत के लिए, यानी फसल उगाने के लिए, एक मनी लेंडर से लोन लिया. उसको उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी और वो आराम से लोन चुका देगी. लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया. कीड़े मकोड़ों ने, पेस्ट्स ने उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी, और अब वो लोन रीपे करने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी. और यहां से शुरू हुई स्वप्ना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम. वो एक डेट ट्रैप में फंस गई. ये डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां से निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है. आप लोन चुकाने के लिए और लोन लेते हो, और आखिर में कर्जा इतना बढ़ जाता है कि स्वप्ना को अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ गया. सोचिए, क्रेडिट ने उसकी लाइफ को आसान करने के बजाय उसे और भी बदतर बना दिया. तो अब यहां पर हमें रुक कर सोचना है, ऐसा क्यों हुआ? एक ही चीज यानी क्रेडिट सलीम के लिए इतनी फायदेमंद कैसे साबित हुई, और वही क्रेडिट स्वप्ना के लिए एक जाल कैसे बन गई? What was the real difference here? Let's find out. The answer, my students, lies in something called the terms of credit. इसको आप लोन का रूल बुक समझ सकते हैं. ये वो रूल्स और कंडीशंस हैं जिन पर कोई भी लोन दिया जाता है. अगर ये टर्म्स आसान और फेयर हो तो लोन आपकी मदद करता है, पर अगर ये टर्म्स मुश्किल हों तो वही लोन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है. So basically, there are 4 key things you always need to look at. पहला है इंटरेस्ट रेट, यानी लोन के ऊपर आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा. दूसरा है कोलैटरल, ये वो सिक्योरिटी है जो आप लोन के बदले में रखते हो. तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कौन कौन से पेपर्स लगेंगे. और चौथा है मोड ऑफ रीपेमेंट, आप लोन वापस कैसे करोगे, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में या एक साथ. ये चारों मिलकर बनाते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट. चलो कोलैटरल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. कोलैटरल एक एसेट है, जैसे आपका घर, जमीन, गाड़ी या इवन गोल्ड. ये चीज बोरोवर लेंडर के पास एक गारंटी के तौर पर रखता है. इसका मतलब यह है कि अगर बोरोवर लोन नहीं चुका पाया तो लेंडर के पास लीगल राइट है कि वो इस कोलैटरल को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर ले. इट्स अ सेफ्टी नेट फॉर द पर्सन गिविंग द मनी. लेट्स लुक एट अ रियल एग्जाम्पल टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर. यहां देखिए मेघा का हाउस लोन. उसने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख का लोन लिया. इंटरेस्ट रेट क्या है? 12% पर ईयर. वापस कब तक करना है? 10 साल में मंथली पेमेंट्स के थ्रू. और कोलैटरल उसके नए घर के कागजात, द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस. देखा आपने, यहां सारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट एकदम साफ साफ लिखे हुए हैं. अब टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल से बाहर निकलते हैं और एक रियल वर्ल्ड रियलिटी चेक के लिए चलते हैं. लेट्स गो टू विलेज नेम्ड सोनपुर और देखते हैं कि वहां ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहां लोगों को क्रेडिट कैसे मिलता है. सोनपुर में हमें 3 अलग अलग लोग मिलेंगे. एक है अरुण, अ मीडियम फार्मर. उसे लोन बैंक से मिल जाता है.
फिर है श्यामल, एक छोटा किसान जिसे एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लोन लेना पड़ता है। और फिर है रमा, एक लैंडलेस लेबरर जो अपने लैंड ओनर एम्प्लॉयर से ही उधार लेती है। देख रहे हैं आप, द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर कंप्लीटली डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अब जरा इस स्लाइड पे आई हुई नंबर्स को देखिए। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। अरुण को बैंक से जो लोन मिला उसका इंटरेस्ट रेट है 8.5% पर ईयर, पर रामा को अपने लैंडलॉर्ड को 5% पर मंथ देना पड़ता है। पता है साल का कितना हुआ? 60% पर एनम। कैन यू इवन इमेजिन द डिफरेंस? दिस इज द ह्यूज गैप बिटवीन फॉर्मल क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। ये कोड ड्रामा की मजबूरी को साफ दिखाता है। वो कहती है कि भले ही उसका लैंडलॉर्ड उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, वो फिर भी उसके लिए काम करती रहती है। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पर वही एक इंसान है जो उसे लोन देता है। दिस शोज यू द हेल्पलेसनेस, द लैक ऑफ ऑप्शंस दैट फोर्सेस पीपल इनटू दीज सिचुएशंस। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे रमा जैसे लोगों को भी सस्ता, फेयर और रिस्पेक्टेबल क्रेडिट मिल सके? वेल, द गुड न्यूज इज देयर इज, एंड दैट आंसर इज कोऑपरेटिव्स। यू सी, बैंक्स के अलावा रूरल एरियाज में सस्ते क्रेडिट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, एंड दैट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। So how do these cooperatives work? It's a really smart system. First, सारे members अपनी थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं। Second, इस पूरे जमा किए हुए पैसे को कोलैटरल की तरह यूज करके कोऑपरेटिव बैंक से एक बड़ा लोन ले लेती है। और फाइनली, इस बड़े फंड से वो अपने ही मेंबर्स को छोटे-छोटे अफोर्डेबल लोन्स देती है। It's basically people coming together to help each other. और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, इट वर्क्स इन रियल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, सोनपुर के पास एक कृषक कोऑपरेटिव है जिसके 2300 फार्मर मेंबर्स हैं, और ये कोऑपरेटिव अपने मेंबर्स को खेती बाड़ी से लेकर नया घर बनाने तक हर चीज के लिए लोन प्रोवाइड करती है। अ फैंटास्टिक रियल वर्ल्ड प्रूफ दैट दिस मॉडल वर्क्स। सो, इस पूरी डिस्कशन का फाइनल टेक अवे क्या है? हमने जो कुछ भी आज सीखा उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द आंसर इज दिस: क्रेडिट अच्छा है या बुरा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, सिचुएशन में रिस्क कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है। अगर टर्म्स ऑफ क्रेडिट फेयर हैं, इंटरेस्ट रेट कम है, तो क्रेडिट आपके लिए एक इंजन फॉर ग्रोथ बन सकता है, जस्ट लाइक सलीम। लेकिन अगर टर्म्स एक्सप्लॉयटेटिव हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो वही क्रेडिट आपको एक डेट ट्रैप में फंसा सकता है, जस्ट लाइक स्वप्ना। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस क्रेडिट के गेम के रूल्स जानते हैं। आपको पता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखना, समझना कितना जरूरी है। सो माई क्वेश्चन टू यू इज, जब फ्यूचर में आपको क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी, हाउ विल यू प्ले दिस गेम? सोचिएगा इस बारे में। विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। All right everyone, welcome back. तो सोशल साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, उसका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशल हिस्सा हम आज समझने वाले हैं। रेडी हो ना? चलो सीधा डाइव इन करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचो, कल को आपको अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, या दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है, या चलो एक किसान की बात करते हैं जिसे अच्छे बीज खरीदने अपनी खेती के लिए। इन सारे सपनों को, इन सारे प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, पैसा। और जब हमारे पास उतनी सेविंग्स नहीं होती, तभी पिक्चर में आता है क्रेडिट, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में लोन कहते हैं। तो अब द बिग क्वेश्चन इज, ये क्रेडिट, ये लोन मिलता कहाँ से है? अच्छा, इसको ना एक जर्नी की तरह सोचो। इंडिया में अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो आपके पास बेसिकली 2 रास्ते हैं। एक है बिल्कुल आसान, सेफ, पक्का हाईवे, और दूसरा एक कच्चा, अनप्रिडिक्टेबल सा रास्ता। और आप कौन सा रास्ता चुनते हो ना, वेल, उससे सब कुछ बदल सकता है, राइट? तो यही 2 रास्तों के नाम हैं, द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर। जो फॉर्मल सेक्टर है वो है हमारा सेफ हाईवे। यहाँ आते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके प्रॉपर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। और फिर आती है दूसरी साइड, द इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, और हाँ, इवन आपके दोस्त या फैमिली। अच्छा, अब फॉर्मल सेक्टर की सबसे खास बात क्या है पता है? कि ये कोई फ्री फॉर ऑल गेम नहीं है। यहाँ एक रेफरी है जो सब पर नजर रखता है, और वो रेफरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। यू सी, आरबीआई का काम यही है, ये देखना कि सारे बैंक्स रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कि इंटरेस्ट रेट्स फेयर हैं, अचानक से बढ़ तो नहीं जाएंगे, और सबसे एब्सोल्युटली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंश्योर करना कि लोन सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही नहीं, बल्कि छोटे किसानों को, स्टूडेंट्स को, छोटे दुकानदारों को, सबको मिले। और अब इमेजिन करो एक ऐसा गेम जिसमें कोई रेफरी नहीं है,
बस वही है इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ कोई आरबीआई नहीं, कोई रूल्स नहीं। जो लोन देने वाले हैं वो लिटरली अपनी मर्जी का इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं, कभी कभी तो 100% से भी ऊपर। सोचो, और अपना पैसा वापस लेने के लिए ना वो कोई भी गलत तरीका, कोई भी अनफेयर मीन्स यूज कर सकते हैं। मतलब इट्स सुपर रिस्की, बहुत अनप्रिडिक्टेबल। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, राइट, कि अगर ये इतना रिस्की है तो लोग फिर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते ही क्यों हैं? वेल, यही तो हमारा अगला टॉपिक है। इसे कहते हैं द इनफॉर्मल ट्रैप। और पता है, ये ट्रैप सिर्फ एक इंसान को नहीं फंसाता, ये पूरे देश की डेवलपमेंट को, उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। चलो समझते हैं कैसे। चलो एक छोटे किसान का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो उसने फसल उगाने के लिए एक मनी लेंडर से बहुत हाई इंटरेस्ट पर लोन ले लिया, लेकिन उस साल बारिश ठीक से नहीं हुई, फसल खराब हो गई। अब क्या होगा? उसकी जितनी भी थोड़ी बहुत कमाई हुई, उसका बड़ा हिस्सा तो सिर्फ लोन का इंटरेस्ट देने में चला गया। देखते देखते जो पैसा उसे लौटाना है वो उसकी इनकम से कहीं ज्यादा हो जाता है। अब इस पहले लोन को चुकाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? एक और लोन लेना पड़ेगा, शायद पहले से भी बड़ा। बस इसी को कहते हैं डेट ट्रैप, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलना, वेल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या क्रेडिट का ये जो पूरा सिस्टम है ये सबके लिए एक जैसा है? क्या इंडिया में हर किसी को उस सेफ फॉर्मल हाईवे पर चलने का, वहां से लोन लेने का एक फेयर चांस मिलता है? क्या लगता है आपको? सोचो, एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है और एक आम डेली वेज वर्कर है। क्या दोनों एक ही जगह से एक ही तरह से लोन लेते होंगे? चलो फैक्ट्स देखते हैं। ओके, अब जरा डाटा पर नजर डालते हैं। ये स्लाइड, इस स्लाइड में पूरी कहानी छिपी है। लेफ्ट साइड पर हैं शहरों में रहने वाले गरीब परिवार, पुअर अर्बन हाउसहोल्ड्स। राइट साइड पर अमीर परिवार, यानी रिच अर्बन हाउसहोल्ड्स। अब इन चार्ट्स को देखो। जो ब्लू हिस्सा है वो है फॉर्मल सेक्टर से लिया गया लोन, और जो ऑरेंज हिस्सा है वो है इनफॉर्मल सेक्टर से। बस एक बार जस्ट लुक एट द डिफरेंस। जमीन आसमान का फर्क है। और यही है वो गैप, वो असमानता। देखो, जो गरीब परिवार हैं उनके लोन्स का एक शॉकिंग 54% कहाँ से आ रहा है? उसी रिस्की, महंगे इनफॉर्मल सेक्टर से। आई मीन आधे से भी ज्यादा। कैन यू बिलीव दैट? और अब कहानी को बिल्कुल पलट दो। अमीर परिवारों को देखो, उनके टोटल लोन्स का एक मैसिव 83% कहाँ से आता है? उस सेफ, सस्ते फॉर्मल सेक्टर से, बैंक से। तो द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इज दिस, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसका असली मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि जो इंसान पहले से ही गरीब है, उसे पैसा उधार लेने के लिए एक अमीर इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और यही वो इनइक्वालिटी है जो लोगों को गरीबी में फंसाए रखती। तो इसका सल्यूशन क्या है? आगे का रास्ता क्या है? गरीब लोग सीधा बैंक्स के पास क्यों नहीं जाते? आखिर बैंक का दरवाजा उनके लिए बंद क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, कोलैटरल। सिंपल भाषा में कोलैटरल का मतलब है एक गारंटी, कोई ऐसी चीज, कोई एसेट, जैसे आपकी जमीन, आपका घर या गाड़ी, जो आप बैंक के पास एक गारंटी के तौर पे रखते हो। अगर फॉर सम रीजन आप लोन नहीं चुका पाए तो बैंक उस एसेट को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। बेसिकली ये बैंक की सेफ्टी नेट। लेकिन सोचो, व्हाट इफ आपके पास कोई जमीन नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई ऐसी कीमती चीज ही नहीं है जो आप गारंटी के तौर पर दे सको? बस यही वो दीवार है, वो सबसे बड़ी रुकावट है जो इंडिया के करोड़ों गरीब लोगों को इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से दूर रखती है। तो सवाल है, इस दीवार को तोड़े कैसे? और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही ब्रिलियंट, एक ग्रासरूट सॉल्यूशन की, जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, शॉर्ट में SHGs। अच्छा, अब ये जादू काम कैसे करता है? सुनो, ये बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल भी। करीब 15 से 20 लोग, आमतौर पर एक ही पड़ोस की औरतें, मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। फिर हर मेंबर हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी सेविंग्स इस ग्रुप में जमा करता है। अब जब भी किसी मेंबर को थोड़े पैसों की छोटे लोन की जरूरत पड़ती है तो वो ग्रुप से ही कम ब्याज पर ले सकती है। बट द रियल मास्टर स्ट्रोक इज दिस, पूरा का पूरा ग्रुप उस लोन को वापस करने की जिम्मेदारी लेता है। और इसी कलेक्टिव गारंटी की वजह से अब बैंक्स पूरे SHG को बिना किसी कोलैटरल के लोन दे देते हैं। ब्रिलियंट, राइट? और ये चीज ना एक बड़ी पिक्चर दिखाती है। देखो, SHG सिर्फ लोन के बारे में नहीं है, दे आर अबाउट एम्पावरमेंट, खास तौर से औरतों के लिए।
ये उन्हें फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाते हैं, उन्हें डिसीजन लेने की पावर देते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां वो सोशल इश्यूज पर भी अपनी आवाज उठा सकती हैं। बेसिकली वो अपनी कम्युनिटीज में चेंज लाने का इंजन बन जाती हैं। इस पावरफुल आइडिया को ना नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी, उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा है। उनके शब्दों में, If credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate, these millions of small people can add up to create the biggest development wonder. तो इस पूरे डिस्कशन से सबसे बड़ी बात आपको क्या याद रखनी है? ये कि सस्ता और आसानी से मिलने वाला क्रेडिट कोई लग्जरी नहीं है। ये किसी भी देश की डेवलपमेंट का फ्यूल है, उसका इंजन है। ये वही चीज़ है जो एक छोटे किसान को आगे बढ़ने का मौका देती है, एक स्टूडेंट को पढ़ने का और एक औरत को अपना बिजनेस शुरू करने का। तो आगे के लिए हम सबके लिए सवाल ये है कि हम ये कैसे इंश्योर करें कि अपॉर्चुनिटी का ये फ्यूल सब तक पहुंचे, सिर्फ कुछ लोगों तक